تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے انٹرمیڈیٹ امتحانات کا اعلان کر دیا ہے۔ 99,874 امیدواروں میں سے 65,837 کامیاب۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں کامیابی کی شرح 65.92% رہی۔ تعلیمی بورڈ کی طرف سے کسی طالب علم کو پوزیشن نہیں دی گئی۔ سٹی 41 نے فیصل آباد ڈویژن میں سب سے زیادہ نمبر لینے والے ڈھونڈ لیے۔ پنجاب کالج ڈائیور روڈ کے رضا وحید نے 1060 نمبر حاصل کیے۔ کپس کالج کے محمد قیس 1059 نمبر کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ پنجاب کالج جڑاوالا روڈ فیصل آباد کی فاطمہ خان اور پنجاب کالج رجانہ روڈ ٹوبہ کے بلال رانا نے 1056 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ریزلٹس کے حوالے سے۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے انٹرمیڈیٹ امتحانات کا اعلان کر دیا ہے۔ نتائج کا اعلان ہوا ہے۔ 99,874 امیدواروں میں سے 65,837 کامیاب ہوئے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں کامیابی کی شرح 65.92% رہی۔ تعلیمی بورڈ کی طرف سے کسی طالب علم کو پوزیشن نہیں دی گئی۔ انٹرمیڈیٹ نتائج تعلیمی بورڈ نے پوزیشن کا اعلان نہ کیا۔ سٹی 41 نے پوزیشن ہولڈرز ڈھونڈ لیے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، تعلیمی بورڈ فیصل آباد کی طرف سے آج صبح 10 بجے انٹرمیڈیٹ کے نتائج جو ہے وہ بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے، جس میں مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب 65.92% رہا، لیکن بورڈ کی طرف سے پوزیشن اناؤنس کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی، کوئی تقریب نہیں کی جا رہی بچوں کی پوزیشن کے لیے، لیکن سٹی 41 جو ہے وہ سب سے ہائی اچیور سامنے لے آیا ہے۔ پنجاب کالج ڈائیور روڈ فیصل آباد کی طالبہ رضا وحید ہیں، جنہوں نے فیصل آباد بورڈ میں سب سے زیادہ 1060 نمبر حاصل کیے ہیں۔ وہ فیصل آباد بورڈ میں انٹرمیڈیٹ میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں سیکنڈ پوزیشن کی تو کپس کالج ڈی گراؤنڈ فیصل آباد کے طالب علم محمد قیس ہیں، جنہوں نے 1059 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ گوکہ تعلیمی بورڈ کی طرف سے پوزیشن اناؤنس نہیں کی گئی، لیکن سیکنڈ ہائیسٹ نمبر کپس کالج کے محمد قیس کے ہیں 1059 نمبر۔ پنجاب کالج جڑاوالا روڈ فیصل آباد کی فاطمہ خان ہیں، جنہوں نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے 1056 نمبر کے ساتھ، اور پنجاب کالج رجانہ روڈ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے بلال رانا ہے، وہ بھی تیسرے نمبر پر ہیں، 1056 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ اس حوالے سے جو تینوں پوزیشن ہیں ان میں پہلی اور تیسری پوزیشن پنجاب کالج کے نام رہی، جبکہ دوسری پوزیشن کپس کالج کے نام رہی، اور مجموعی طور پر 1060 نمبر حاصل کیے ہیں فیصل آباد پنجاب کالج ڈائیور روڈ کی رضا وحید نے، جو کہ سب سے ٹاپ پر ہیں۔ لیکن تعلیمی بورڈ کی طرف سے نہ تو کوئی پوزیشن اناؤنس کی گئی، نہ کسی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی، لیکن سٹی 41 جو ہے اس کی کوشش ہے کہ تمام وہ بچے جنہوں نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہیں ان کو سراہا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ جی بہت شکریہ جہانگیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے انٹرمیڈیٹ نتائج کا اعلان۔ ضلع جھنگ میں 16,073 طلبہ و طالبات میں سے 11,480 پاس ہو گئے۔ ضلع بھر میں پاس طلبہ کی شرح 71.42% رہی۔ ضلع بھر میں 4,593 طلبہ فیل ہو گئے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے نتائج مایوس کن رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے انٹرمیڈیٹ نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اویس خان سے۔ اویس بتائیے گا۔ بالکل، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد کی جانب سے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کیا گیا، جس کے مطابق جو ہے ضلع بھر میں پاس طلبہ کی شرح جو ہے 71.42% رہی، جبکہ 4593 طلبہ ہیں جو فیل ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے سبجیکٹ کے وائز جو ہے تو پری میڈیکل میں جو پاس طلبہ ہیں ان کی شرح 90.63% رہی ہے، جبکہ انجینئرنگ میں 88.99% طلبہ جو ہے پاس ہوئے ہیں۔ اسی کے علاوہ جنرل سائنس کی اگر بات کی جائے 67.81% پاس طلبہ کی شرح رہی، جبکہ ہیومینٹیز کے پاس طلبہ کی شرح جو ہے وہ 58% رہی۔ اسی کے ساتھ اگر بات کی جائے امتحانی نتائج کے حوالے سے تو نجی تعلیمی اداروں کی نسبت جو ہے وہ سرکاری تعلیمی اداروں کا جو رزلٹ تھا وہ خاص جو ہے وہ مناسب نہیں رہا۔ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ طلبہ جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں کے جو طلبہ ہیں وہ فیل بھی ہوئے۔ اگر بات کی جائے جنگ کا سب سے بڑا کالج جو ہے آدیوال کالج، اس میں انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ جو ہے صرف 49.85% رہا، جبکہ دوسرا جنگ کا بڑا کالج جو ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالج، اس میں پاس طلبہ کی شرح جو ہے 52.17% رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے اگر بات کی جائے 18 ہزاری کی جو ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالج 18 ہزاری جو ہے اس میں صرف 33% طلبہ ہیں جو پاس ہو چکے ہیں، جبکہ اسی کے ساتھ جو ہے روڈ السلطان میں صرف 45% طلبہ پاس ہوئے ہیں۔ احمد خیال کی اگر بات کی ہے ہائر سیکنڈری اسکول میں
45% तलबा पास हुए हैं, जबकि शोरकोट सिटी ग्रेजुएट कॉलेज से सिर्फ 40 तलबा ही पास हो सके हैं। इसी के अलावा कोटीसा शाह में भी सिर्फ 40% बच्चे ही पास हो सके हैं। इस हवाले से जो सरकारी स्कूलों के नताइज हैं वो खास हद तक जो है वो गैर मुतमईन जो है दिखाई दिए, तमाम निजी तालीमी इदारों की जानिब से जो है बेहतर भी सामने आई है। रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट्स करने के लिए। और अब बात करेंगे डॉलर के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी बदस्तूर जारी है। अमरीकी डॉलर की कदर में ₹1.39 की कमी। इंटरबैंक पर डॉलर ₹298.50 पर ट्रेड होने लगा। आपको बता रहे हैं डॉलर की सूरत हाल के हवाले से इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी बदस्तूर जारी है। अमरीकी डॉलर की कदर में ₹1.39 की कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹298.50 पर ट्रेड होने लगा है। अपडेट करें आपको डॉलर के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी हुई है। डॉलर पे ही बात करेंगे। डॉलर की बदलती कीमत बरामदी शोबे को असरअंदाज करने लगी है। एक्सपोर्टर्स डॉलर की कदर में कमी पर मुतमईन, मगर आलमी मंडी में क्या कीमत रखी जाए बड़ा मसला बन गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। डॉलर की बदलती कीमत बरामदी शोबे को असरअंदाज करने लगी है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, तफसीलात क्या है, बताइएगा। डॉलर की बदलती हुई कीमत जो है वो इस वक्त बरामदी सेक्टर को मुतासर किए हुए है। इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ रहा है कि आलमी मंडी के अंदर कीमत देने से और कॉस्टिंग करने से एक्सपोर्टर्स परेशान नजर आते हैं। खालिद नदीम मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर एफबूमा हैं, इनसे बातें। खालिद साहब, क्या मुश्किलात डॉलर की उतार चढ़ाव से आ रहे हैं और आपका मुतालबा क्या है कि डॉलर के क्या कोई फिक्स रेट निकाला जाए, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। इसके ऊपर आप लास्ट ईयर भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं। हम ये एज ए एक्सपोर्टर हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हमें एटलीस्ट एक रेट फिक्स हो 4 माह 6 माह के लिए, कि हम उसके ऊपर प्लानिंग करके कस्टमर्स को प्राइसेस दे सके। अभी हमें ये पता नहीं है, हम 300 के ऊपर कैलकुलेट करके प्राइस कस्टमर को दें, 290 के ऊपर दें, क्योंकि जब शिपमेंट्स जानी है 3 माह बाद या 4 माह बाद, नो बडी नो के उस वक्त क्या रेट्स होगा। इसी तरह इंपोर्ट्स के ऊपर भी जो बाइंग कर रहे हैं उनको भी कोई पता नहीं है कि हमने किस रेट के ऊपर ये खरीदनी है चीज़ें या सेल आउट करनी है। खालिद नदीम साहब की आप बात सुन रहे तो कह रहे हैं सबसे मुश्किल मराला ये है सबसे इस वक्त कि कीमत देनी क्या है, क्योंकि 2 से 3 माह में जब शिपमेंट जानी है अगर कीमत ये दे, क्योंकि बायर इस वक्त बड़ा स्मार्ट हो चुका है, वो कैलकुलेट करता है करंट प्राइस और ब्लैक मार्केट खत्म करे। बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। जंग के किसान एक बार फिर से सड़कों पर आ गए। किसान इत्तेहाद मुतालबे की अदम मंजूरी पर सरापा एहतजाज बन गए। किसानों को ना शुगर मिल्स की जानिब से वाजिबात की अदायगी हुई, ना फेस्को की जानिब से बिल्स के हवाले से फराहमी की गई। आपको बता रहे हैं जंग के किसान एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं। वाजिबात की अदायगी हुई, ना फेस्को की जानिब से बिल्स के हवाले से रिलीफ फराहम किया गया। एहतजाज जारी है। किसान इत्तेहाद मुतालबात की अदम मंजूरी पर सरापा एहतजाज बन गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के हवाले से मजीद बात करेंगे अवैस खान से। किसानों का क्या कहना है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में किसान इत्तेहाद की जानिब से एक बार फिर से एहतजाज का जो है वो सिलसिला जारी है। किसान इत्तेहाद की जानिब से जो है बड़े पैमाने पर जो है वो चिन्योट मोड़ के ऊपर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें किसानों की बड़ी तादाद जो है वो शरीक है। किसानों की जानिब से जो है वो बड़े पैमाने पर ये मुतालबात जो है वो सामने आए थे, जिसमें जो है वो किसान जो है वो उसके अंदर ये खसूस पहला मुतालबा जो किसानों की जानिब से आया था वो शुगर मिल्स के अंदर जो वाजिबात की अदम अदायगी है उसके हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तकरीबन जो है वो 2 शुगर मिल, जिसमें जो है वो शकरगंज 1 और शकरगंज जो है वो 2 शुगर मिल्स हैं, उसके अंदर जो है वो किसानों को खासियत तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। 45 करोड़ रुपए के करीब जो है वो तकरीबन जो रकूम थी वो जो शुगर मिल्स के अंदर जो है उसकी जानिब से वाजिबुल अदा थी, तमाम वो ताहाल जो है वो किसानों को जो है नहीं मिल सकी। इसी के अलावा जो है खादों के हवाले से और फेस्को के हवाले से जो है वो खासियत तक जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। बड़ी पैमाने पर मुतालबात भी किसानों की जानिब से किया गया। एहतजाज का सिलसिला भी जो है वो जारी रखा गया, तमाम फिर भी जो है वो मुतालबात का हल जो है वो मुमकिन नहीं हो पाया है। इस हवाले से जो है वो किसान इत्तेहाद की जानिब से आज इकट्ठ जो है वो किया गया। मेरा कैमरामैन नजीम अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो है वो किसान मौजूद हैं। जिले सदर वाजिद नौल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि एहतजाज के हवाले से क्या मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सिटी 41 के अवैस भाई का शुक्रिया जो हमें हमेशा की तरह किसानों को लाइव कवरेज देते हैं और किसानों के मसाइल को उजागर करते हैं। हमारा एजेंडा जो है, हमारे मुतालबात जो हैं वो कोई नाजायज़ नहीं है, जायज़ मुतालबात हैं, जिसमें वापडा की मकामी सतह पे करप्शन, ये टेक्निकल करप्शन है, जो ओवर बिलिंग करते हैं
और बिला वजह डिटेक्शन बिल डाल दिया जाता है मेरे किसानों को, हालांकि मीटर ठीक चल रहा होता है। उनका एक MR मीटर रीडर जाता है, ये जी मीटर धुंधला हो गया, ये स्याही हो गई है जी, ये वाश हो गया, ये ओपन हो गया है, इसको आप रिप्लेस करवा दें। जब रिप्लेस हो जाता है तो उसमें 10,000, 15,000, 12,000, 10 से तो कम नहीं है, प्लस है, यूनिट डाल दिए जाते हैं और 50 रुपए फी यूनिट का रेट है। अगर 50 यूनिट ज़रबे 10,000 की जाए तो 5 लाख बिल बनता है। कहाँ से मेरा किसान 5 लाख बिल ले आए? तो सेकंड खाद का प्रॉब्लम है कि हमें डिप्टी कमिश्नर जंग साहब से मैंने गुजारिश की है, कमिश्नर साहबा सलवत सईद साहबा को भी, और निगरान वजीर आला से भी हमारी गुजारिश है, मोहसिन नकवी साहब से, डायरेक्टर ज़राअत पंजाब से, कि खुदारा कंट्रोल रेट पे मेरे गयूर किसानों को फर्टिलाइज़र मुहैया की जाए। यही किसान पाकिस्तान के मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, यही मुल्क चला रहा है और रुपया किसान की वजह से चल रहा है। जो डिवीजनल सदर जो हैं वो नज़ीर कामा साहब मौजूद हैं, से बात करें। सर बताया कि शुगर मिल्स की जाने से वाजबात नहीं अदा हो रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर मिल दे वाजबात कामल कामों जंग मिल दे 30 तो 35 करोड़ रुपया है। बार बार यकीनदानी करें लेकिन अज तक पैसा नहीं दिता। असा हुण एहतजाज करन ते मजबूर है, किसानां दा गन्ना नूं साल गुजर गया है लेकिन हुण ताई मिलना वाले मालिक टस तो मस नहीं होए, बल्कि एक नवा तरीका बना लिया जो CPR खरीद लेंदे 10-15% कम तो उन्होंने लोगों पेमेंट कर देंगे। ये नहीं दोहरे कमाने जिसनों आख्या जा सकता है। तो अफसोस नाले इस हुकूमत वक्त एहतजाज के जरिए रिकॉर्ड पे करीदा बाबर करीदा जो किसान दे नाल चंगा काम करो तो पेमेंट लै दो, नहीं तो किसान सड़कों तो सी हुकूमत ही तमाशा वेख दिता सी विकसा। का कहना है अगर मुतालबात जो है मंजूर ना हुए थे तो एहतजाज का दायरा कार जो है मजीद वसी किया जाएगा। तो ऐसे किसान इत्तेहाद की जानिब से चिन्योट मोड़ पर एहतजाजी रैली का सिलसिला जारी है, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर तक जो धरना भी दिया जाएगा। हमारी अदायगियां की जाए, नहीं की गई तो एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। जंग के बासियों के लिए अच्छी खबर है, वर्ल्ड बैंक के ताउन से डिस्पोजल स्टेशन की बहाली और सीवरेज लाइनों की सफाई जारी। 96 करोड़ रुपए की लागत के फेज 3 पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा, अपडेट कीजिएगा। के ताउन से जंग में 3 अरब 80 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ मंसूबों के ऊपर जो है वो काम चल रहा है। आज जो है एक जायज़ा इजलास प्रोग्राम ऑफिसर इंजीनियर गुलाम शबीर की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें ना सिर्फ कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर और इसके साथ साथ जो म्यूनसिपल कमेटी है उसके अफसरान ने इसमें शिरकत की और आने वाला जो 3rd पैकेज है उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू हुई। हमारे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा मजमूई तौर पर 3rd पैकेज कितनी मालियत का है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जंग के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली पैकेज 3 में जो है जंग का मेन सीवर सारा शामिल है, जिसमें ट्रंक सीवर्स हैं जोन 1 के, सेटेलाइट टाउन है, गोजरा रोड है, टोबा रोड है, और जो जोन 3 है हमारा MC का एरिया है, स्टेशन चौक है और जो बंद वाला एरिया है सारा, इसमें हमारी जो मिसिंग लाइंस हैं वो रिप्लेस होंगी और जो नया सिस्टम है जहाँ पे सिस्टम नहीं है उसको सिस्टम नया लगाया जाएगा और जहाँ पे मौजूद है और वो ख़राब है उसको अपग्रेड किया जाएगा। इससे भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि ये कब तक इसका जो है वो टेंडर ओपन होगा और ऑन ग्राउंड काम कब तक शुरू हो सकेगा? सर, इसका टेंडर ओपन हो चुका है, फाइनेंशियल और टेक्निकल ओपन हो चुकी हैं। विद इन वीक इंशाल्लाह इसका वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा और काम जो है फौरन से स्टार्ट कर दिया जाएगा। इससे जंग में के ऊपर जो है वो क्या बिछाने वाले कॉन्ट्रैक्टर से मशीन सलाह तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा अपडेट करने के लिए। घरेलू कमर्शियल इंडस्ट्रियल सार्फिन पर सख्तियां तो सरकारी इदारों को खुली छुट्टी। सरकारी इदारों का बोझ अवाम उठाने पर मजबूर। रीजन भर के सरकारी इदारों ने 1 अरब 80 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए। वासा ने फेस्टो को 1.5 अरब रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए। आपको बता रहे हैं बिल्स के हवाले से घरेलू कमर्शियल इंडस्ट्रियल सार्फिन पर सख्तियां तो सरकारी इदारों को खुली छुट्टी है। इस हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अवैस बताइएगा बिल्स अदा नहीं किए गए। जी बिल्कुल, घरेलू कमर्शियल इंडस्ट्री और सार्फिन पर फेस्को की जानिब से सख्तियाँ की जा रही हैं, तो दूसरी जानब सरकारी इदारों का बोझ आम आवाम जो है वो उठाने पर मजबूर है। सरकारी इदारों की जानिब से जो है वो करोड़ों रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए गए। रीजन भर के सरकारी इदारों ने 1 अरब
80 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए। फेस्को को 1.5 अरब रुपए के बिजली के बिल जो है वो वासा ने अदा नहीं किए। वासा फेस्को का सबसे बड़ा डिफाल्टर है। और उसके साथ साथ पंजाब पुलिस ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली के बिल अदा नहीं किए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 50 लाख और महकमा रेलवे ने 68 लाख रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए। वफाकी मौसिब 4,50,000 और महकमा जेल 1 करोड़ 50 लाख का फेस्को का नादेंदा है। और PHA ने 3 लाख, TMA मदीना टाउन ने 5 करोड़ रुपए के बिल जो है वो फेस्को को अदा नहीं किए। जो है वो तकरीबन 30 से जायद ये सरकारी अदारे हैं जिनकी जानिब से फेस्को को बिजली के बिलों की अदायगियां नहीं की गई। 1 अरब 80 करोड़ रुपए की ये रकम है जिसका बोझ आम आवाम उठाने पर मजबूर है। फेस्को की रिकवरी जो है वो मुतासर होती है, जिसकी वजह से फिर फेस्को जो है वो वासा फेस्को का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। वासा फैसलाबाद में शहरियों को अच्छी खबर सुना दी। बिलों से इलेक्ट्रिसिटी एडजस्टमेंट चार्जेस को निकाल दिया क्या? शहरियों को 25% तक रियायत मिलेगी। इसी पर बात करते हैं वकास बेग से। वकास अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल महंगाई और मुश्किल तरीन माशी सूरत हाल के अंदर वासा की जानिब से शहरियों के लिए अच्छी खबर है। फैसलाबाद के शहरियों को वासा बिलों में जो है फ्यूल एडजस्टमेंट की प्राइस में 25% जो ऐड किया जाता था उससे रिलीफ करने का फैसला कर लिया गया है। डायरेक्टर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि इतनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर कहा यह जाता है कि मुआशी बहरान भी है, शहरी परेशान भी हैं, ऐसे में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 25% को डिक्रीज करके शहरियों को जो है सहूलियात फराहम करने का फैसला किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इसके बारे में ये है कि इतनी महंगाई के दौर में एक फ़ैसला हुआ कि जो 25% EAC फ्यूल अपना इलेक्ट्रिसिटी एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उसको ख़त्म करके गवर्निंग बॉडी की अप्रूवल के साथ उसको अटैच किया गया है कि जब तक टिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ गवर्निंग बॉडी। तो शहरियों को सितंबर के बिलों में इनको रिलीफ दिया गया है। डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्री तमाम बिलों में इनको रिलीफ दिया गया है। अच्छा बिल्कुल, डोमेस्टिक हो कमर्शियल इंडस्ट्री हो तमाम ही वासा के सार्फिन को घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की सहूलियात दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकास। सेहत सहूलत कार्ड पर डायलिसिस, तलसीमिया, कैंसर और अद्वियात मुफ्त, हड्डी पट्टा जोड़ और न्यूरो की मुफ्त सहूलत ट्रॉमा तक मिलेगी। दीगर अमराज के इलाज के लिए मरीज को 30% अदायगी करना होगी। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं आज़ादार हुसैन, अपडेट कीजिएगा। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल से मुतलिक, जिसमें सेहत सहूलत कार्ड से मुतलिक जो आवाम को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं उससे मुतलिक हदायत जारी की गई है। क्या हदायत जारी की गई है? हमारे साथ DMS जो AMS हैं अलाइड पाल फोगल पर्सन है सेहत सहूलत कार्ड के, वो मौजूदा उनसे बात करते हैं। सर बताएं क्या नोटिस जारी किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट गाहे बगाहे जो ये सेहत सहूलत प्रोग्राम है इसमें तब्दीलियाँ ला रही है और ख़ुसूसन प्राइवेट सेक्टर के लिए तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिसमें पहले तो उन्होंने जो C सेक्शन है उस पर पाबंदी लगा दी कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं होगा, अब सरकारी अस्पतालों में ही वो फ्री होगा। अभी कुछ और जो बीमारियां हैं उनके लिए उन्होंने छूट दी है। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसे इलाज हैं जिनके लिए गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिसमें जो हॉस्पिटल है उसको कुछ शेयर, कुछ परसेंटेज वो अस्पताल अदा करेगा और कुछ परसेंटेज जो है वो सेहत सहूलत प्रोग्राम से उसको अदा होगी। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो पहले से ही चल रहा है निज़ाम, हर जो बीमारी का इलाज सेहत सहूलत प्रोग्राम पे वो फ्री है। और प्राइवेट सेक्टर में जो क्रोनिक इलनेसेस हैं जिस तरह कैंसर है या शुगर से कॉम्प्लिकेशंस हैं या कुछ और बीमारियां हैं थैलेसीमिया वगैरह, उनका जो इलाज है वो मुकम्मल फ्री ही होगा अभी भी प्राइवेट सेक्टर में। मरीजों को नए नोटिस के मुताबिक सहूलियात दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। जंग में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की वाहिद CT स्कैन मशीन 2 रोज से खराब है, मरीज बेयारों मददगार हो गए। इस हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की CT स्कैन मशीन दूसरे दिन से ख़राब है, जिसके बायस मरीजों को ना सिर्फ मुश्किलात का सामना है बल्कि ट्रामा सेंटर में आने वाले मरीज जो है वो शदीद अजियत में मुब्तला हैं। वो प्राइवेट हॉस्पिटल से महंगे दामों जो है CT स्कैन करवाने पर मजबूर हो गए हैं। मेरे साथ कोई लवाहिकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी मुश्किलात है, दूसरा दिन है, फिर रहे हैं। इधर भी तो थोड़े पैसों में हो जाता था, उधर बाहर तो बहुत ज़्यादा कीमत है। पहले इतनी महंगाई है कि हम गरीब लोग क्या करें। इधर ये काम आसानी से हो जाता था, अब ये दूसरा दिन है, हम फिर कर थक गए हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है वो इसकी फीस कई गुना ज़्यादा है, जिसके बायस ना सिर्फ इनको मुश्किलात का सामना है बल्कि स्कैन मशीन खराब है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वसीम।
सो दो पहली बात पाओ, 5,000 पे तमाम 5 एतराज़ात दूर कराओ। टोबा टेक्सिंग में पासपोर्ट दफ्तर के बाहर टाउट माफिया सरगर्म। इस हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से, बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में पासपोर्ट दफ्तर के बाहर टाउट माफिया सरगर्म हो चुका है। टाउट माफिया जो है वो इस कदर हावी हो चुका है कि टाउट माफिया के बगैर जो है वो पासपोर्ट का अमला पासपोर्ट बनाने से ही इनकारी है। इस हवाले से शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि दूर दराज के इलाकों से जो है वो पासपोर्ट बनाने के घर से जो है वो टोबा टेक्सिंग के पासपोर्ट दफ्तर का रुख करते हैं, लेकिन मैं जो है वो टाउट माफिया के बगैर अंदर जाने वाले को जो है वो लाइनों में सारा दिन खड़ा कर वापस भेज दिया जाता है। तो कभी कोई ऑब्जेक्शन लगाकर वापस भेज दिया जाता है, ताहम जो है वो टाउट माफिया के साथ जाने वाले और रिश्वत अदा करने वाले को जो है वो काम फौरी हो जाता है। इस हवाले से शहरी मौजूदन से समझने की कोशिश करते हैं। भाईजान, आप बताइएगा कि कब से जो है वो पासपोर्ट के असूल के लिए पासपोर्ट दफ्तर का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो आपको किन मुश्किलात का सामना है? टाउट माफिया की जानिब से जो है वो आपके क्या मुतालबा किया जाता है? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तकरीबन एक हफ्ते से इधर चक्कर लगवा रहे हैं और पासपोर्ट के सिलसिले में सारे इदारों में ही है ये माफिया, और ख़ास तौर पर ये जो है पासपोर्ट ऑफिस में ना जो टाउट माफिया ना बहुत सरगर्म है। ये जो बाहर खड़े हैं ये कहते हैं 500 रुपया दे दो, हम आपको लाइन में फ्रंट पे ले जाते हैं। अंदर जाते हैं तो अंदर ऑफिसर बात नहीं सुनते और ये रिश्वत का तकाजा करते हैं। अब मुल्की हालात का तो सबको पता है कि बहुत ख़राब हालात हैं। अब कुछ लोग ये मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए। अब इन्होंने ये सिलसिला कर दिया, यहाँ पासपोर्ट का हसूल भी नामुमकिन बना दिया है। हर आदमी परेशान है, टाउट माफिया ने सबको परेशान किया हुआ है। हम ये तमाम जो इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इनका जो ये इन्होंने बाहर टाउट बिठाए हुए हैं इनको आउट किया जाए, और जो ऑफिसर टाउट माफिया से शहरी परेशान है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। फैसलाबाद कोलगेट पाकिस्तान दांतों की सेहत और सफाई आगाही में पेश है। कोलगेट पाकिस्तान की जानिब से ओरल हेल्थ वीक्स का इनेकाद। सदा मुस्कुराएं पाकिस्तान के नाम से फैसलाबाद में भी 8 मुख्तलिफ मकामात पर ओरल हेल्थ वीक का आगाज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अरसलान दुर्रानी से। अरसलान, बताइएगा। दांतों की सेहत और सफाई के लिए कोलगेट पाकिस्तान पेश है और इसी तरह कोलगेट पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान भर में ओरल हेल्थ वीक्स का इनेकाद किया जा रहा है। इसी तरह आज फैसलाबाद की बारी है और फैसलाबाद में आज ओरल हेल्थ वीक जो है वो मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ अस्पतालों में जो पेशेंट्स हैं उनका फ्री चेकअप किया जा रहा है और दांतों की सफाई के हवाले से जो आगाही है वो भी दी जा रही है। इस हवाले से मेरे बात करने के लिए डॉक्टर डेंटल में मौजूद से बात करते हैं और पेशेंट में मौजूद से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, बताइए कितना ज़रूरी है ये कोलगेट की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है कि दांतों की सफाई कितनी ज़रूरी है? और देखा यह जाता है कि डील नहीं होते ये दांतों के जो अमराज हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कोलगेट ने ये कैसा इकदाम उठाया? हम पहली तो बात ये है कि हम कोलगेट वालों की तरफ से उनको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये डेंटल कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया। डेंटल कैंप का ऑर्गेनाइज़ करने का मेन मकसद बेसिकली ये था कि हमने पेशेंट को बेसिकली ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रोवाइड करनी थी, क्योंकि बेसिकली पेशेंट इस चीज़ को जब निगलेक्ट करता है तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर फेस करता है। जो पेशेंट को पता है उस वक्त नहीं चल रहा होता कि नहीं ना कि मैं इस प्रॉब्लम के अंदर फेस करूँगा। बाद में अगर फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी प्रॉब्लम ही दांत निकलने की तरफ, दांत मसूड़ों के प्रॉब्लम की तरफ चली जाती है, तो हम विद द कोलैबोरेशन ऑफ द कोलगेट हम बेसिकली एक डेंटल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें हम पेशेंट को बेसिक ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस वगैरह, बेसिक नहीं ना पेशेंट को स्केलिंग की प्रोवाइडेशन की वजह से, बेसिक नहीं ना ट्रीटमेंट प्लान की वजह से कि कौन कौन सी चीज़ें इनके लिए प्रॉपर ज़रूरी है। एज अ डॉक्टर मैं हर पेशेंट को प्रिस्क्राइब ये करना चाहता हूँ कि आइदर उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उसको 6 to 8 मंथ के अंदर एक वजह पे ज़रूर अपने आप को डेंटल चेकअप करवाना चाहिए ताकि कोई और प्रॉब्लम क्रिएट उनके लिए ना हो सके। तो अभी हम तकरीबन माशाल्लाह हमारा 3 दिन का कैंप हो चुका है, आगे भी 3 दिन का कैंप हमारा कंटिन्यू है। तो मैं तमाम नीना फैसलाबाद के जितने भी जो हमारे डेंटल मदीना टीचिंग हॉस्पिटल के इर्द गिर्द के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो आएँ, अपनी नहीं ना प्रॉपर तरीके से नहीं ना अपनी इंस्पेक्शन वगैरह करवाएं ताकि कोई और प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट ना हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और पेशेंट मौजूद से भी बात करना चाहेंगे। आप बताएं कितना अच्छा इनिशिएटिव है कि फ्री चेकअप किए जा रहे हैं दांतों के जितने भी अमराज है और कंसल्टेंट जो है वो बड़े अच्छे हैं, ताउन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सारा ताउन कर रहे हैं, बड़े अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसके अलावा फ़ीस कोई नहीं लगती और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कोलगेट की तरफ से। और अभी जिस तरह आपने बताया ऑलरेडी 3 दिन ऑलरेडी हैं, तो लोग आएँ चेकअप कराएँ। अच्छा, बिल्कुल, शहरी जो है वो यहाँ पर पहुँचे, फ्री चेकअप हो रहा है और सदा मुस्कुराए पाकिस्तान इस स्लोगन से कोलगेट पाकिस्तान जो है। बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी अपडेट करने के लिए।
इंटर कॉलेजिएट एथलेटिक्स मुकाबलों में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वालों की हौसला अफजाई। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने एथलीट से मुलाकात की, सूबाई सतह के मुकाबलों के लिए रुखसत किया। वकार गुमन बताएगा इस हालत से। चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने फैसलाबाद डिवीजन में चिन्योट से ताल्लुक़ रखने वाले जो एथलीट्स हैं जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है, आज उनसे मुलाकात की है, उनको फूल पेश किए हैं और आज ये पंजाब लेवल पर खेलने के लिए यहाँ से उनको रुखसत भी किया है। डिप्टी कमिश्नर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, चिन्योट में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, प्रोविंशियल लेवल पे आज ये टीम जा रही है, आप लोगों ने इनके लिए क्या करने जा रहे हैं, इनको किस तरह सपोर्ट किया जा रहा है? ये बच्चे जी हमारा सरमाया इफ्तिखार है, हमारा फ्यूचर है। स्पेशली जो 3 गेम्स में हमारे यहाँ से जो 3 नॉमिनीज़ हैं जो प्रोविंशियल लेवल पे जाके ना सिर्फ चिन्योट बल्कि इस डिवीज़न को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए हमने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और फिर उनको बुला के उनकी सताइश की है और जो उनकी ज़ाहिर है हम माली तरीके से मदद कर सकते हैं वो भी करेंगे और जो इक्विपमेंट या गेयर के हवाले से उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन साथ साथ जो है इंशाल्लाह ये सितंबर का महीना जैसे ख़त्म होता है तो हम इंशाल्लाह जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो स्पोर्ट्स हैं इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसका भी इनेकाद करेंगे ताकि मैक्सिमम जो हमारा पोटेंशियल है उसको हम टैप करें और ताकि चाहे वो इंडिविजुअल स्पोर्ट हो या कलेक्टिव स्पोर्ट हो, टीम स्पोर्ट्स हो, तो उनके अंदर भी जो है चिन्योट की रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम हो। जी सर, अगर ये तीनों प्रोविंशियल लेवल पे भी फर्स्ट पोजीशन लेकर आते हैं, आपने इनके वेलकम का भी ऐलान किया, किस तरह वेलकम किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैंने कहा जी कि इंशाल्लाह हम आपको डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री से पूरा ज़िला आपको रिसीव करेगा। कोशिश और मतमा नज़र यही है कि जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी जो बिफिटिंग मैनर में जो है उनकी सताइश होनी चाहिए और उनको पूरी कम्युनिटी और पूरी आवाम की तरफ से और फिर बिलखुसूस इंतज़ामी तौर पे भी उनकी पूरी सपोर्ट हो। वकार गुमन, बहुत शुक्रिया आपका।